So in disaccharide, yesterday we had discussed the glycosidic leakage and types of glycosidic leakage, that is C1C2, C1C3, maybe C1C4, C1C6. Now today we need to discuss the disaccharides. Disaccharides means what are disaccharides? So disaccharides are those carbohydrates which are made of two monosaccharide or which are give two monosaccharide on hydrolysis, जो दो मोनोसैकेराइड से बने होते हैं या दो मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस के बाद देते हैं. In your syllabus there are three disaccharide as I informed you, that is sucrose, lactose and maltose. Sucrose, maltose and lactose. So first I'm going to start, that is sucrose. First is here, that is sucrose. In sucrose, first information, it is a disaccharide. Second information, its molecular formula is C12H22O11. Molecular formula is C12H22O11. Now, next information, what are the two monosaccharide by which the sucrose is made of? सुक्रोज किन दो मोनोसैकेराइड का बना होता है और व्हाट वी विल गेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा? दिस क्वेश्चन इज कमिंग एवरी टाइम. दैट इज द सेकेंड लाइन. व्हेन सुक्रोज अंडरगो हाइड्रोलिसिस देन व्हाट इट गिव, ये क्या देगा? तो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. इट इज मेड ऑफ टू मोनोसैकेराइड. आउट ऑफ दैट टू मोनोसैकेराइड, one of the monosaccharide is here, that is, it is called alpha D positive glucose and beta D negative fructose. Alpha D positive glucose, beta D negative fructose. I think now it is clear कि what is the meaning of alpha. अल्फा बीटा आपको बताया गया था, कैपिटल डी कैपिटल एल आपको बताया गया था, and plus minus means dextrorotatory and levorotatory. So three symbols are here before the name, that is alpha form, capital D form and dextrorotatory glucose, beta form, capital D form and levorotatory fructose. So sucrose is either, question दो तरीके से पूछ सकता है कि what are the monosaccharide which are combined to form the sucrose. वो monosaccharide क्या है जो combine होकर sucrose बनाते हैं? So that are alpha D positive glucose and beta D negative fructose. The whole symbol will be present in your competitive examination or MCQs. एक दे देगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, एक दे देगा अल्फा डी निगेटिव ग्लूकोज, एक दे देगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, एक दे देगा beta D negative glucose. So answer will be alpha D positive glucose is present in sucrose. ये तीनों symbol आपके आते हैं MCQ में. So remember the symbol, not only D plus glucose. Sir. Yes. Sir, clear one second, alpha and beta one. Alpha beta तो yesterday 2 days back topic is there, that is in cyclic structure. If OH is downward at the first carbon and upward at the second carbon, first carbon, then if got it, sir. ठीक है, this one alpha beta is from cyclic structure and capital D capital is capital D capital L is from, ठीक है, Fischer structure, that at the lowest asymmetric carbon which side the OH is present, and plus minus sign is optical activity, it is dextrorotatory or levorotatory. So you need to remember all these say three symbol because the question will be there. So उसमें आपको तीनों सिंबल पूरा याद रखना है कि सुक्रोज में ग्लूकोज तो होता है, यस. ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज होता है? अल्फा ग्लूकोज की बीटा ग्लूकोज, देन अल्फा ग्लूकोज. कैपिटल डी ग्लूकोज की कैपिटल एल ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज. देन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज की लिवोरोटेटरी ग्लूकोज, देन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज होता है. एंड फ्रक्टोज कौन सा होता है?
अल्फा फ्रक्टोज की बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, कैपिटल डी फ्रक्टोज की कैपिटल एल फ्रक्टोज, कैपिटल डी फ्रक्टोज. नाउ लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज, देन लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज. सो टू क्वेश्चन विल बी देयर कि सुक्रोज किस मोनोसैकेराइड से बनता है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज व्हाट वी विल गेट. सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलता है, दोनों का आंसर सेम होगा. नाउ इन सुक्रोज which type of glycosidic linkage is present. मैंने आपको कल ही बता दिया glycosidic linkage. So which type of glycosidic linkage is present? Then you can see in sucrose C1C2 glycosidic linkage is present. C1C2. Which type of glycosidic linkage is present? C1C2. What is the meaning of C1C2? Means the first carbon of glucose. See here alpha D यहाँ पे लिखा हुआ है. First carbon of glucose combined with second carbon of fructose. बीटा यहाँ लिखा हुआ है जो मैं पीछे बता रहा था. So first carbon of alpha glucose combined with second carbon of beta glucose to form the sucrose. So sucrose के बनने में कौन सा डाइसैक्राइड होता है, मीन्स कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. So that is C1C2 linkage. मे बी ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज which carbon of glucose is form glycosidic linkage. Then glucose का फर्स्ट कार्बन है, फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन है. एंड एज लाइक यस्टरडे आई इन्फॉर्म कि जो दो कार्बन कंबाइन होंगे उनके OH, इसके फर्स्ट कार्बन का OH और इसके सेकेंड कार्बन का OH, दैट टू विल बी कंबाइन टुगेदर, रिलीज द वाटर, वाटर रिलीज करेंगे and form the oxide bond. So this is the structure of sucrose. सुक्रोज का स्ट्रक्चर अब देखिए कैसे बनाना है. हाउ यू विल ड्रॉ दिस, वेरी सिंपल. C1C2 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 and one carbon will be outside, that is sixth carbon, which is CH2OH. Then fructose, fructose is pentagonal, as you know. Now oxygen, one carbon, two carbon, three carbon, four carbon, one carbon will be here outside, that is sixth carbon, and one carbon will be here outside, that will be फर्स्ट कार्बन. नंबरिंग अगर करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है, इधर करते हैं तो फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन है. इट्स ईच कार्बन. अब इसके सारे कार्बन पे क्या लगाना है, H, H, OH. जैसा आप लगाते हैं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, वेरी सिंपल, जस्ट जो आप जानते हैं. फिफ्थ कार्बन पे ओनली H विल बी देयर एंड हियर that is OH, H and OH, H and OH, then H. Now what will be happen, wait a minute, I think हमको इस तरह लिखना चाहिए. जो लिखा था वो गलत नहीं था. Actually I need to show you removal, that's why I am doing this. So here will be OH, here will be OH. These OH will be combined. इसके फर्स्ट कार्बन का, इसके सेकंड कार्बन का. OH will be combined. So what will be happen? H2O will be released out and both will be combined by oxygen. So first carbon of glucose, second carbon of fructose. This structure is what? This is the structure of sucrose. ये sucrose का structure है, रटना नहीं है. ग्लूकोज बनाइए, फ्रक्टोज बनाइए, 1 और 2 कार्बन आमने सामने रख करके OH हटा करके ऑक्सीजन से अटैच कर दीजिए, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया. सो विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज C1C2. सो ग्लूकोज का, सुक्रोज का स्ट्रक्चर आई थिंक अगर आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देन
यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस, ठीक है, यही चीज आपका कह रहा है। नाउ द अनदर इंफॉर्मेशन, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में आपको बताया जा रहा था कि ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। नाउ this sucrose is non reducing sugar in your whole syllabus of 12th। आपके 12th के पूरे सिलेबस में ओनली सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको हम कहे थे कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे फाइंड करेंगे, सो फॉर दिस वी विल डिस्कस लेटर। तो अब समय आ गया है वो डिस्कस करने का। आई हैड इन्फॉर्म्ड यू कि दैट विल बी रिड्यूसिंग शुगर विच विल बी, अगर मैं वो स्लाइड ओपन करता हूँ, so reducing and non-reducing, reducing and non-reducing डिफिनीशन लिखना है। तब तो मैंने आपसे कहा था आपको केवल ये वो लिख देना है कि दोज कार्बोहाइड्रेट which can reduce failing solution and tolerance reagent they are called reducing sugar, and those carbohydrate which are not reduce failing solution or tolerance reagent that are called non reducing sugar। लेकिन पता कैसे करेंगे कि ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है? तो रिड्यूसिंग है कि नहीं है इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट इज फ्री और नॉट। फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट इज फ्री और नॉट, बस ये पता करना है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट इज फ्री और दैट इज इंगेज इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इंगेज है so that will be non reducing। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इंगेज है so that will be non reducing, and if that will be free so that will be reducing। बस आपको इतना देखना है कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है कि फ्री है। अगर फ्री है so that will be reducing, means that will reduce failing and tolerance। और अगर बॉन्ड नहीं बना रहा, मतलब सॉरी, अगर बॉन्ड बना रहा है so that will be non reducing। अगर बॉन्ड बना रहा है so that will be non reducing, मतलब वो फेलिंग और टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेगा। एंड अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है देन दैट विल बी रिड्यूसिंग। बस आपको यही चीज देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। नाउ सी, ट्राई करते हैं पता करने को। ये है, अब बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करिए। अभी आपको ये पता नहीं है कि ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है। सो सी द ग्लूकोज एंड सी द फ्रक्टोज, इसके मोनोसैकेराइड को चेक करिए। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज का कौन सा कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन था? तो ग्लूकोज इज एल्डिहाइड। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। सो इट्स फर्स्ट कार्बन वाज फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड ग्रुप था। तो इसका कौन सा कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन था? फर्स्ट वाला। अब फ्रक्टोज कीटोन था, तो इसका कौन सा कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला था? दैट इज सेकेंड कार्बन। ग्लूकोज एल्डिहाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन में, मैंने आपको कई बार बतला दिया है कि ग्लूकोज एल्डिहाइड है, इसका फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। फ्रक्टोज कीटोन है, इसका सेकेंड कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। तो हमको ये पता है कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। सो सी हियर, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दोनों का फंक्शनल ग्रुप कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इंगेज है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। सो इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन फ्री नहीं है। इफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन फ्री नहीं है सो दिस विल बी नॉन रिड्यूसिंग। ये पहचानने के लिए है। डिफिनीशन अगर आएगा कि व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तब तो आप कहेंगे कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर not reduce the tolerance reagent and failing solution that are non reducing sugar, and which are reduced that are reducing sugar। लेकिन how can you identify कि which carbohydrate is reducing or non reducing? So for that this is the information कि that carbohydrate in which functional group carbon is free that are reducing sugar, and that carbohydrate in which functional group carbon is
not free, that is engaged in glycosidic linkage, glycosidic bond formation, that are non-reducing. So question will be there, why sucrose is non-reducing sugar? Sucrose non-reducing sugar क्यों है? Then your answer will be there, because the functional group carbon of glucose, that is first carbon, and functional group carbon of fructose, that is second carbon, both are involved in glycosidic bond formation. दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्यू टू विच this sugar is not able to reduce Tollens reagent or failing solution. That's why it is non reducing sugar. केवल यही एक आपके में नॉन रिड्यूसिंग है. अगर हम इसकी बात करें, जस्ट चेक कर रहे हैं, अभी हम पीछे जा रहे हैं, माल्टोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. माल्टोज रिड्यूसिंग है कि नहीं? सो देखिए माल्टोज किसका बना है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का. सो ये एक ग्लूकोज है, ये सेकेंड ग्लूकोज है. इसमें जो फर्स्ट ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है, लेकिन जो सेकेंड ग्लूकोज है इसका पहला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बना रहा है, ये फ्री है. दैट्स वाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्री एनोमेरिक कार्बन, मतलब फर्स्ट कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन. सो इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन मतलब इस डाइसैकेराइड में एक ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन तो बाइंडेड है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन फ्री है. सो फ्री होने के कारण दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन विल बी रिड्यूस द टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट. ये टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा टू रिड्यूस देम, उसको रिड्यूस करेगा. सो इट इज रिड्यूसिंग सुगर. देखिए यही लिखा हुआ है, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस एट C1 कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज. जो सेकेंड ग्लूकोज के C1 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला कार्बन है, दैट इज फ्री. दैट्स व्हाई इट विल रिड्यूस द टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट. अगर इसी तरह ये थर्ड देखते हैं, लैक्टोज, तो लैक्टोज इज मेड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. गैलेक्टोज भी एल्डिहाइड वाला ही ग्रुप होता है, सो इट्स फर्स्ट कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन. ग्लूकोज तो आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन. गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन तो बाइंडेड है, बट ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन क्या है? फ्री है. सो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन फ्री है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग सुगर. ये भी आपका क्या है? रिड्यूसिंग सुगर है. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? तो जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए. स्ट्रक्चर में मोनोसैकेराइड्स चेक करिए कि सारे मोनोसैकेराइड्स के फंक्शनल ग्रुप कार्बन बाइंडेड हैं कि नहीं. इफ किसी भी एक मोनोसैकेराइड का फंक्शनल ग्रुप कार्बन फ्री होगा, सो दैट विल बी रिड्यूसिंग. अगर सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन बाइंड होंगे, सो दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग. सो इन सुक्रोज फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, दोनों मोनोसैकेराइड का फंक्शनल ग्रुप कार्बन क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाइंड है, सो फ्री नहीं है. दैट्स व्हाई it will not reduce the tolerance reagent in failing solution and it is called a non reducing sugar. इसको कहते हैं non reducing sugar. So I think it is clear कि पहले देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है. टॉपिक वाइज पढ़िएगा, ये पूरा लिखने को नहीं आएगा. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सुक्रोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. सो इट इज ओलिगोसैकेराइड क्योंकि ये डाइसैकेराइड है. अब ओलिगोसैकेराइड में आपको बताया गया था डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नोना डेका, तो ये क्या है? डाइसैकेराइड है. नाउ आफ्टर इट्स हाइड्रोलिसिस which monosaccharide we will, or by which monosaccharide it is made of? So it is made of two monosaccharide. So after its hydrolysis we will get the two monosaccharide. What are the name of two monosaccharide? That is alpha D positive glucose and beta D negative fructose. Now next यही क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट
The glycosidic linkage which is present in sucrose is of which type of glycosidic linkage? That is C1C2 type of glycosidic linkage. What is the meaning of C1C2 type of glycosidic linkage? Means the glycosidic linkage is present between the first carbon of one monosaccharide and second carbon of second monosaccharide. So in sucrose, whose first carbon is participated and whose second carbon is participated? So first carbon of glucose is participated, second carbon of fructose is participated. Now next, sucrose is a reducing sugar और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है? देन इंफॉर्मेशन इज देयर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग. एंड आपको अगर कंफ्यूजन हो तो इसलिए आई हैड इन्फॉर्म्ड यू कि इन योर होल सिलेबस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जितना भी नाम दिया है उन सब में इन योर सिलेबस ओनली सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग. मे बी आपको हेल्प कर दे याद करने में कि सर ने कहा था केवल एक ही नॉन रिड्यूसिंग है, दैट इज सुक्रोज. सो नाउ द क्वेश्चन इज देयर, व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग? बिकॉज सुक्रोज इज नॉट एबल टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन. ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है. देन क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इट इज नॉट टॉलेंस रिएजेंट? The functional group carbon, that is first carbon of glucose, and functional group carbon, that is second carbon of fructose, are involved in glycosidic bond formation. That's why their functional group carbon are not free, and functional group carbon are not free. That's why they are not able to reduce tolerance reagent and failing solution. इसलिए ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता है. दिस इज अबाउट द सुक्रोज. नाउ द थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन विल बी देयर. सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर. सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर. ये क्वेश्चन आता है. व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट? Screen and voice both are clear now? Anyone please? Yes sir. Okay. So another question. देखिए कितना क्वेश्चन सुक्रोज से बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा. जो मैं आपको बता रहा हूँ बस एक क्वेश्चन आएगा. सो लास्ट क्वेश्चन इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर है. सुक्रोज को रीजन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. सी, मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इट इज लीवो रोटेटरी. ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है. ठीक है, और दोनों को मिला करके सुक्रोज बन रहा है. ठीक है. सो सी क्या लिखा हुआ है? इन सुक्रोज. ठीक है. सुक्रोज रियल में कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. रियल में क्या है? डेक्स्ट्रो. लेकिन हम इसके कंपोनेंट पे जाएं, कंपोनेंट पे जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको मिलेगा, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमको दो चीजें मिलेंगी, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज. ग्लूकोज is dextro rotatory with the angle of rotation that is plus साइन बता रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का 52.5 डिग्री. मतलब जो ग्लूकोज इसमें रहता है उस ग्लूकोज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इट विल डेविएट द पीपीएल टुवर्ड्स राइट साइड विद द एंगल ऑफ 52.5 डिग्री. राइट साइड ये पीपीएल को डेविएट कर देता है. एंड फ्रक्टोज विच इज प्रेजेंट इन दिस, जो इसमें फ्रक्टोज था उसमें कौन सा साइन था? निगेटिव साइन था. सो फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी. जो फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है. सो इट्स एंगल इज 92.4 डिग्री. ये जो रोटेट कर रहा है, डेविएट कर रहा है, वो डेविएशन एंगल जो है अपने मेन पाथ से, जो इसका मेन पाथ जाना चाहिए
उससे है 92.4 डिग्री, मतलब ये 92.4 डिग्री लेफ्ट साइड घुमा रहा है, वो 52.5 डिग्री राइट साइड घुमा दे रहा है। ये डेविएशन एंगल है अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग अलग लें। सो जब क्या होता है, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, पानी में ऐड किया जाता है। पानी में ऐड करते हैं तो इसमें ये ब्रेक होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। जैसा आप जानते हैं, अभी आपने देखा कि हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। सो उस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, ग्लूकोज है फ्रक्टोज है। सो ग्लूकोज का डेविएशन एंगल है 52.5। ग्लूकोज के कारण जो आने वाली लाइट है वो 52.5 डिग्री राइट जानी चाहिए, और फ्रक्टोज इसको 92.4 डिग्री लेफ्ट करेगा। सो राइट और लेफ्ट में कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन के बाद अप्रोक्स 40 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए। अगर 52 डिग्री ये राइट कर रहा है तो ये उसमें से 52 डिग्री कैंसिल कर दे रहा है, तो अप्रोक्स 40 डिग्री लेफ्ट एक्स्ट्रा डेविएशन है। सो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो 40 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इक्वल अमाउंट है। सो 40 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए। बट साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन हैव डेविएशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। होना चाहिए क्या, लेफ्ट मतलब लीवो रोटेटरी। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लीवो रोटेटरी। बट इन रियल ये होता क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, उस पे ये सुटेबल नहीं हो रहा था, फिट नहीं हो रहा था। तो अब इसके लिए पूरे रूल को चेंज करने से अच्छा इसको नाम दे दिया गया इनवर्ट। इनवर्ट मतलब आप जानते हैं दैट इज उल्टा, रिवर्स। सो जैसा हाइपोथेसिस है उससे अपोजिट ये चेंज कर रहा है, शो कर रहा है। सो दिस इज called invert sugar. The hydrolysis of sucrose bring about a change in the sign of rotation dextro to levo। मतलब होना चाहिए लीवो, लेकिन वो हो जाता है क्या, डेक्स्ट्रो। तो फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बिल्कुल इजी है। कि सुक्रोज बना है किसका, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज का एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज का। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस द सॉल्यूशन विल मस्ट बी लीवो रोटेटरी। सॉल्यूशन होना चाहिए लीवो रोटेटरी, क्योंकि 52.5 डिग्री 92.5 डिग्री से कैंसिल होगा, तब भी 40 डिग्री ये एक्स्ट्रा हुआ डेविएशन। 40 मतलब ये अगर राइट साइड ले जा रहा था 52.5, तो सेकेंड वाला उसको डेविएट करके लेफ्ट ले गया 92.4। सो अगर कैंसिल भी करते हैं, सो 40 डिग्री लेफ्ट मतलब फाइनल डेविएशन लेफ्ट होना चाहिए, बट रियल में देखा गया तो ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हमारा हाइपोथेसिस कहता है कि लीवो रोटेटरी होना चाहिए, लेकिन ये हुआ क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड invert sugar. So sucrose, why sucrose is called invert sugar, then you will say कि because sucrose is made of, ठीक है, alpha D positive glucose and beta D negative, out of which the rotation of fructose is 92.4 degree left side and rotation of glucose is 52.5 degree right side. So after hydrolysis the mixture must be levorotatory. Mixture होना चाहिए levorotatory, but सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सो ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर। की होना चाहिए लिवो रोटेटरी बट शो करता है प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर। इसलिए इसको कहते हैं इनवर्ट सुगर। सो सुक्रोज में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सुक्रोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, जो भी ऑप्शन वहां पर हो। हाइड्रोलिसिस के बाद कितने मोनोसैकेराइड देगा, दो। बोथ द मोनोसैकेराइड विल बी ऑफ सेम टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप।
What are the monosaccharide which we will obtain after hydrolysis of sucrose? That is alpha D positive glucose and beta D negative fructose. Then after, which type of glycosidic linkage is present in sucrose? That is C1C2. In C1C2, which carbon of glucose is participated? First carbon. Which carbon of fructose is participated? Second carbon. After this, sucrose is reducing sugar or non-reducing sugar? Then non-reducing sugar. Why sucrose is non-reducing sugar? Because it is not able to reduce Tollens reagent and failing solution. Now, why it is not able to reduce the Tollens reagent or failing solution? Because the functional group carbon of glucose and fructose, that is first carbon of glucose and second carbon of fructose, are involved in glycosidic bond formation. That two carbons are not free. That's why it is not able to reduce Tollens reagent or failing solution and called non-reducing sugar. After that, why sucrose is called invert sugar? Then because sucrose is made of alpha D positive glucose and beta D negative fructose in equal amount. ठीक है? And after hydrolysis, its solution must be levorotatory because the levo rotation of fructose is 92.4 degree and dextro rotation of glucose is 52.5 degree. So mixture must be levorotatory, but sucrose is dextrorotatory. It is showing the rotation that is opposite to the hypothesis. That's why it is called invert sugar. इसलिए इसको invert sugar कहते हैं. So sucrose is over. सुक्रोज ही हमको सबसे ज्यादा पढ़ना था. हाँ हेलो यस Sir, why it is showing? ये चीज क्लियर नहीं हुआ. जैसे हमने जब ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिक्स किया तो वो सॉल्यूशन लिवोरोटेटरी आ रहा था, लेकिन जब उसी से कंबाइन जो डेक्सट्रोज मतलब जो सुक्रोज बन रहा था, सुक्रोज हमको कहाँ से मिला? तो शुगर है. शुगर कहाँ से मिलता है? केन शुगर से. केन शुगर आपको बताया गया. तो केन शुगर से, तो जब गन्ने का शुगर जो लिया गया नेचुरल सुक्रोज को देखा गया तो उसका रोटेशन आया डेक्स्ट्रो रोटेटरी. लेकिन जब हम उसी अमाउंट में ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिला करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो लिवो रोटेटरी आ रहा है. लेकिन वही सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसमें भी वही ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है, लेकिन वहां पे वो आ रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी. तो सुक्रोज का नेचर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि हमारे हाइपोथेसिस के अपोजिट है. इसका कोई एक्चुअल वो नहीं मिला, मीन्स यू कैन से एक्सेप्शनल केस. इसका कोई एक्चुअल रीजन नहीं मिला कि क्यों ऐसा डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है, होना चाहिए लिवो रोटेटरी. तो अब इसके लिए पूरे सारे नियम को चेंज करना पड़ता, जिस नियम पे इन्होंने बाकी बताया कि जिसका एंगल ज्यादा होगा वही रोटेशन शो करेगा. तो उसके लिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया, दैट इज इनवर्ट सुगर. इनवर्ट सुगर. सो इनवर्ट शुगर के नाम से आपको समझ में आ जाएगा. इनवर्ट शुगर मतलब ऐसा शुगर जो बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है. अपोजिट प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टी. सो देन नो फिजिकल प्रॉपर्टी, नो केमिकल प्रॉपर्टी. द अपोजिट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल नेचर. होना चाहिए लिवो रोटेटरी, बट इन रियल इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. जो हमारा सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्योंकि ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का बना है तो लिवो होना चाहिए. इसका कोई एक्चुअल रीजन अभी तक पता नहीं चला, तो मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसको नाम दे दिया गया इनवर्ट शुगर और इसको एक्सेप्शनल केस में लगा दिया गया. इसीलिए ये आपके सिलेबस में है भी. आप माल्टोज जो हमको पढ़ना है बस केवल इसका मोनोसेक्राइड पढ़ना है, लैक्टोज जो पढ़ना है वो डाइसेक्राइड बस मोनोसेक्राइड पढ़ना है. लेकिन इसी में हमको सबसे ज्यादा पढ़ना था क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात है कि ये नॉन रिड्यूसिंग चाहता तो सारा रिड्यूसिंग ही ले लेता, लेकिन एक आपके में नॉन रिड्यूसिंग रखा है बस ये. इज दैट क्लियर? इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आप क्लियर नहीं, नेट पे भी सर्च करो कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है. इसीलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया है इनवर्ट शुगर. मीन्स यू कैन से, जैसे आप कहते हो सर कोई एक्सेप्शनल केस है तो दिस वन इज द एक्सेप्शनल केस. मतलब जैसे आप कहीं कभी पढ़ा रहे हो या कहीं आप पढ़ रहे हो तो या कोई आपसे पूछा
कि अच्छा ये बताओ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है विद दिस एंगल, ये लीवो रोटेटरी है विद दिस एंगल, तो दोनों को मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका रोटेशन क्या होगा? तो जिसका ज्यादा एंगल रहेगा रोटेशन वही होगा। लेकिन क्या कोई एक्सेप्शनल है? तो यस, एक्सेप्शनल इज हियर, दैट इज सुक्रोज, जिसमें कि रोटेशन एंगल लीवो रोटेटरी का ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये लीवो रोटेटरी नहीं होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्लियर? सो टुमारो वी विल डिस्कस द माल्टोज। अब माल्टोज में ये सब नहीं पढ़ना है, माल्टोज में बस सिंपल सा कौन सा लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड, लैक्टोज में भी है, ये दोनों पढ़ लेंगे। फिर पॉलीसेक्राइड इज नाउ नॉट इन योर सिलेबस, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारे पेजेस आपको मैंने दे दिया है, समय मिलेगा वी विल डिस्कस दिस, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज नॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस। प्रीवियस ईयर इट वाज देयर एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी देयर, बट दिस ईयर इट इज नॉट देयर। इस साल आपके में बस ये है।